Hello, praise Lord everyone. Today let us discuss about the topic of power of death and fear of death and be a part of word. Come on, let us start with a discuss about the word of God. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का सुंदर सा मौका दिया परमेश्वर ने। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं सुंदर सा परमेश्वर ने मौका दिया हमको कि परमेश्वर के वचन को हम बांट सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू होली स्पिरिट। आज का जो टॉपिक है पावर ऑफ डेथ, तो मरण के ऊपर क्या है? विजयी है। तो मरण के ऊपर किसको विजयी है? तो हम ये वचन पे देखेंगे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है उसके जो पुत्र है, उसके जो बच्चे हैं, हिज चिल्ड्रंस, परमेश्वर के जो लोग हैं, जब हम लोग यीशु मसीह का जो खून हम शरीर और उसका जो खून हम लोग भागीदार होते हैं, व्हेन वी हैव ए फेलोशिप बाय टेकिंग हिज ब्रेड एंड ब्लड, इन द सेम वे देयर इज अ पावर इन द डेथ। हालेलुया। तो जैसे हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के अध्याय में तीसरे वचन में कहता है कि जब आदम और हवा जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ कर जाते हैं आगे, व्हेन दे डिसोबे हिज कमांड्स, तो परमेश्वर उनको शाप देते हैं। इवन गॉड गिव कर्स टू सर्पेंट आल्सो कि तू मट्टी में रेंगेगा और मट्टी खाएगा। हालेलुया, मट्टी में रेंगेगा और मट्टी खाएगा। जैसे उसके नीचे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर ने मनुष्य को भी शाप दिया कि तू मट्टी से आया है और मट्टी में ही जाएगा। तू मट्टी से आया है और तू मट्टी में ही जाएगा। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि सर्पेंट को, शैतान को, कि वो मट्टी में रेंगेगा और मट्टी खाएगा, तो उसको अधिकार है। तो हम लोग 15वां वचन पढ़ेंगे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दस्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? द फियर ऑफ द डेथ। हमको मरण का जो डर है, तो उससे हम कैसे छुटकारा पाए, उसको हम ओवरकम कैसा करें, हम उसको हम पार करके कैसे आगे जाए, तो उसी चीज के लिए हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। तो हम हमारे मरण से हम कैसे आगे जीत कर कैसे आगे जाना है, हाउ टू गेट विक्ट्री ऑन द डेथ, तो हम लोग ये चीज पे बात करेंगे। Let us go for John 14:27. John 14:27 అధ్యాయం. శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, లోకం ఇచ్చినట్టుగా నేను మీకు అనుగ్రహించుట లేదు. వాట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ అంటే దేవుని యొక్క శాంతిని మనకి ఇస్తున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, దేవుడు క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. అకార్డింగ్ టు ది బైబుల్ స్క్రిప్చర్ ఆర్ సేయింగ్, ఇక్కడ దేవుని శాంతి మనకు ఇస్తున్నాడు. ఎందుకంటే దేవుడు తన సిల్వ వేయబడిన తర్వాత తన యొక్క లైట్ని, తన యొక్క శాంతిని, ప్రతి ఒక్క తన ప్రేమని, తన యొక్క కృపని మనకు అనుగ్రహించాడు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాడు. ఓన్లీ దట్ గాడ్ ఈస్ ఓన్లీ హిస్ లైట్, హిస్ గ్రేస్ అండ్ హిస్ లవ్ హియర్. అకార్డింగ్ టు ది స్క్రిప్చర్ హీ సేయింగ్, లోకం ఇచ్చినట్టుగా నేను మీకు అనుగ్రహించలేదు. అంటే వాట్? అకార్డింగ్ టు ద వరల్డ్ ద గాడ్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ దట్. అంటే ఈ వరల్డ్ ప్రకారంగా దేవుడు మనకు చెప్పట్లేదండి. దేవుడు తన ప్రేమ రూపకంగా మనకు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇది దేవుడు తన శాంతిని మనకి ఇచ్చాడు. అండ్ జాషువా 1:9, ఇన్ జాషువా 1:9, నేను నీకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాను కదా, నిబ్బరము కలిగి ధైర్యంగా నుండుము, దిగులు పడకు, ఒడియకము, నీవు నడుచు మార్గంలో అన్నింటిలో నీ దేవుడు యెహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడు. ఇదిగోండి, దేవుడు ఎప్పుడైతే తన సిలువేయబడిన రోజున, తన సిలువేయబడిన తర్వాత తిరిగి 3వ దినం లేచిన తర్వాత మనకు విజయం వచ్చింది. ఎందుకు? దేవుడు ఇక్కడ ఆజ్ఞాపించిన కదా నిబ్బరము కలిగి ఉండి. ఎందుకంటే తను చూశాడు, తన శరీరకంగా తను సిలువేయబడి తిరిగి మరణాన్ని జయించి మన కోసం తను తిరిగి వచ్చాడు. అక్కడ మనం ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. వీఆర్ ఇన్ ద లైట్. ఈ లైట్ ఏం చేస్తుంది? దేవుడు మనకు లైట్. ఈ లైట్ ఏం చేస్తుంది? చుట్టుపక్కలంతా లైట్ వస్తుంది కదా, ఆ లైట్ని మనం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నిబ్బరం కలిగి ఉంది. ఆ లైట్ మనతో ఉన్నప్పుడు వై వి ఫియర్? ఈ మరణాన్ని మనం ఎందుకు భయపడాలి మరణానికి? సో వీ డోంట్ నీడ్ టు ఫియర్. హియర్ అకార్డింగ్ టు స్క్రిప్చర్ జాషువా 1:9, ది గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ నో నీడ్ టు ఫియర్, బీ బ్రేవ్, ధైర్యంగా నుండుము, దిగులు పడకు, డోంట్ బీ ఫెయిల్, జడియకుము, నీవు నడుచు మార్గంలో నీ తోడైన యెహోవా నీకు తోడైనాడు. గాడ్ ఈస్ విత్ us. అకార్డింగ్ టు స్క్రిప్చర్స్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ గాడ్ ఈస్ విత్ us. అండ్ Matthew 6:34 God is saying, రేపటి గూర్చి చింతింపకూడదు, రేపటి దినము దాని సంగతులను గూర్చి చింతింపకూడదు, ఆనాటికి చాలును.
రేపటి గురించి చింతించకు. వాట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్, రేపటి గురించి చింతకు. డోంట్ నీడ్ టు ఫియర్ ఫర్ ది టుమారో. వాట్ ఈస్ టుడే యూ కెన్ థింక్, బికాస్ God has created some flowers on the world, because every day the flowers glow na. For every day God is creating many flowers. పువ్వు ఎట్లా పుష్పిస్తుంది, ఒక్క రోజుకి తన అందంగా పుష్పిస్తుంది, కానీ దానికన్నా గొప్పగా మనల్ని చేశాడు. ఎందుకంటే తన అమూల్యమైన ప్రేమతోటి, తన శ్వాసతో మునిపే మట్టితోటి తన శ్వాసను వదిలి మనకి చేశాడు. దానికన్నా గొప్పగా చేశాడు. అలాంటప్పుడు దేవుడు మనతో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇంకెందుకు భయం? అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు, నో నీడ్ టు ఫియర్. అంటే నిబ్బరము కలిగి దేవుడితో ప్రార్థిస్తున్నప్పుడే, తనతో రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడే మనకి వెలిగి మనతో ఉంటుంది. ఏనాటికి ఆనాటికి చాలును. నో నీడ్ టు ఫియర్ ఫర్ టుమారో. రేపటి గురించి మీరు చింతించని అవసరం లేదు. నో ఫియర్ ఫర్ ఓన్లీ నౌ. ఈ రోజున నీకేం కావాలో దేవుని అడుగు, ప్రతిదీ సమకూరుస్తాడు. రేపటి గురించి రేపు ఉదయాన్ని మళ్ళీ లేచి దేవునితో ఫెలోషిప్ ఉన్న రోజులు నువ్వు అడుగు, ఇస్తూనే ఉంటాడు. ఒక్కసారి వదిలేసావా, నువ్వు వదిలేసినా కానీ దేవుడు నేను వదలడు. థ్యాంక్ యూ. तो फियर ऑफ द डेथ एंड देयर इज अ पावर ऑन द डेथ. एक्लीसियस 7:2 में आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ. जेवनार के घर जाने से शौक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा. तो एवरीवन हैव ए डेस्टिनी. सबका एक पड़ाव है, सबका एक डेस्टिनी है. हर एक इंसान का एक डेस्टिनी है. ऐसा कोई नहीं है कि किसी का डेस्टिनी है. ऐसा नहीं है कि मैं जीऊंगा या दूसरा मरेगा, या वो जिएगा और मैं मरूंगा. सबको मरण है. कोई पहले जाता है, कोई पीछे जाता है, कोई बाद में जाता है, कोई पहले निकल जाता है. तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि मरण जो है सबके लिए है. ऐसा कोई नहीं है कि कोई मरने वाला नहीं बोलकर, ऐसा नहीं है. सबके लिए मरण है. तो हम लोग ये देखेंगे, जब हम ये चीज देख रहे हैं कि गॉड सबके लिए एक डेस्टिनी रखा है. सब पहला मरण. सो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट डेथ, फिजिकल डेथ. तो हम लोग यही बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट डेथ हम लोग बात करेंगे कि सबको पहला मरण है, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है शैतान को कि तू मट्टी में रहेगा और मट्टी खाएगा, और हम मट्टी से आए और मट्टी में ही जाएंगे हम लोग. तो हमको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. हमको किस चीज की, कि मरण की चिंता करने की जरूरत नहीं है हमको. सो हाउ टू ओवरकम द डेथ, तो हमारा यही बात करेंगे हम लोग. तो जब हम देख रहे हैं कि सबका डेस्टिनी एक ही है, सबको मरना है, हर एक को मरना है. कोई मरण से बच नहीं सकता, कोई मरण से भाग नहीं सकता. तो यहाँ पे ये देखेंगे. सो हर दिन, एवरी डे गॉड इज रिमाइंडिंग अस अबाउट द डेथ. द सिचुएशन एज वी आर फेसिंग टुडे, पीपल आर फियरिंग फॉर द डेथ, राइट. तो हम लोग एज ए चर्च, एज ए विश्वासी, जैसे हम लोग विश्वासी है, तो हमारा विश्वास कैसे रहना चाहिए, हम उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए, वो मरण को, वो मृत्यु को. तो हम वो देखेंगे. तो हर दिन परमेश्वर हमको मरण के बारे में याद दिलाता है, क्योंकि सबका डेस्टिनी एक ही है, सबको मरना है. कोई ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी भर जीने वाले हैं बोलकर. तो हम देखेंगे एक्लीसियस के अध्याय में 8वें वचन में क्या कहता है कि जीवन देने वाली आत्मा किसी के हाथ में नहीं है, मरण देने वाली आत्मा किसी के हाथ में नहीं है. तो जीवन जो है परमेश्वर से आया है, और जो मरण भी आएगा परमेश्वर की इच्छा से ही आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन दिया है, और परमेश्वर जब चाहिए परमेश्वर को, वो परमेश्वर लेगा. वो उसको कोई रोक नहीं सकता, उससे कोई छीन नहीं सकता. उसके नीचे जब हम 8वें में पढ़ेंगे, उसके नीचे पढ़ेंगे, जो गुनाह करता है, जो पाप करता है, वो न्याय से भाग नहीं सकता बोलकर कहता है परमेश्वर का वचन. न्याय से जो है वो भाग नहीं सकता. तो जैसे हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो जो चीज हम लोग बात कर रहे हैं, फियर ऑफ द डेथ, फियर ऑफ द डेथ, एंड देयर इज अ पावर ऑन द डेथ. सो वी नो there is a power on the death. No one can run from the death. कोई ऐसा इंसान नहीं है कि वो मरण से भाग सकता है. लेकिन सबको डेस्टिनी है, सबका डेस्टिनी है, वो भाग नहीं सकता वो मरण से. लेकिन जो डर है हमारे अंदर, जो मरण के लिए, हम वो चीज के लिए देखेंगे हम लोग. तो हम लोग देखेंगे, मेरे साथ में निकालिए 1 पतरस 1 अध्याय और 23वां वचन पढ़ेंगे हम लोग. क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा न्याय जन्म पाओ. हालेलुया. क्या कह रहा है परमेश्वर, कि हम जब परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम विश्वास करते हैं, तो हम हमारी जिंदगी जो पुरानी जिंदगी है, जैसे कि हम लोग एक वचन में पढ़े, हम लोग पिछले वचन में जो क्या पढ़े हम लोग, कि हम हमारे अंदर विश्वास आने से पहले हम क्या थे, कैदी थे.
वी वे प्रिजनर बिफोर फेथ कम्स इन अवर लाइफ। सो यहाँ पे क्या कहता है, जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो हम एक नए इंसान बनते हैं। हम एक शारीरिक से आत्मिक जीवन में हमको कैसे बढ़ना है, हमारे अंदर एक नई आत्मा आती है, परमेश्वर की आत्मा आती है। जब हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करते हैं, परमेश्वर के वचन पर जब परमेश्वर का वचन बीज बन के हमारे जीवन में आता है, तो हम जो नाश होना चाहिए था, हम नाश ना होते हुए हम परमेश्वर के फलदायी बनेंगे हम लोग। तो हम आगे पढ़ेंगे परमेश्वर के इस वचन में। तो परमेश्वर ये एक चीज सिखा रहा है कि व्हेन वी फियर, जब हमारे जीवन में मरण आता है, जब हमारे जीवन में डर आता है, सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, इफ यू फियर व्हेन डेथ कम्स, अगर हम मरण जब आ रहा है हमारे जीवन में, तो अगर मरण हमारे जीवन में आ रहा है, अगर हम उस समय डरेंगे, तो मरण की जो आत्मा है, मरण जो है वो जीत के हमको आगे जाएगा, लेकिन हम उसको जीत के आगे नहीं जाएंगे। फिर से सुनिए, अगर हमारे अंदर जो डर है, मरने का जो डर है, अगर वो मरने का डर हमारे जीवन में रूल कर रहा है, तो वो जो मरने का जो डर है, जो मरण का जो डर है, वो जीत के हमको आगे जाएगा। हालेलुया। अगर हमारे अंदर वचन नहीं है, अगर डर हमारे अंदर है, लेकिन डर, हम जो चीज के लिए हम लोग डर रहे हैं, मरण के लिए डर रहे हैं, तो वो डर की वजह से वो मरण जो है जीत के आगे जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे क्या कह रहा है, देखिए हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. We praise your name, O Lord. We worship you, Lord Jesus Christ, mighty God. Let your name be praised, O Lord. Lord, release your powerful word, O Lord. Lord Jesus Christ, to receive, O Lord. Let receive, O Lord. Let your people receive in the name of Jesus, mighty name of Nazareth, O Lord. Amen. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. यहाँ पे देखिए 24वां वचन कहता है, पहला अध्याय और 24वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जो मनुष्य का जो जीवन है घास की जैसा है। जैसे घास होती है, घास के जैसा है। और जो घास को जो फूल लगते हैं, जब हवा आती है, तो हवा आने से वो फूल जो है उड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। फूल सूखने के बाद में क्या होती है, और घास भी सूख जाती है। जब गुलाब का फूल जब नया खुलता है, तो इतना सुंदर होता है, इतना खूबसूरती से खुलता है। वैसे ही इंसान का जीवन भी उस फूल के जैसा है और उस घास के जैसा है। हालेलुया। इंसान की महिमा भी जो है उस घास के जैसा है। मनुष्य का जो महिमा है एक फूल के जैसा है। तो यहीं पे परमेश्वर वही कह रहा है कि हमारा जीवन फूल के जैसा और घास के जैसा है। जैसे हवा आती है, उसका भी एक समय रहता है, हवा आती है और घास को भी और फूल के पत्तों को भी उड़ा के लेके चले जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग आगे का 25वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा, और यह ही सुसमाचार का वचन है। हमारा जीवन, जो मनुष्य का जीवन है, हम लोग हमेशा टिकने वाले नहीं हैं। हम आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन युगानुयुग रहेगा। हम चले जाएंगे परमेश्वर का वचन, लेकिन कभी परमेश्वर का वचन कभी नहीं जाएगा। इसी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता। जो परमेश्वर ने कहा वही होगा, जो परमेश्वर ने बोला वही काम होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार में, वचन में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे, तो एक चीज सामने रखता, मैं आपके सामने दो चीजें रखा, दो एग्जाम्पल्स रखा कि एक इंसान मार रहा है, किसी को मार रहा है और खा रहा है, पी रहा है, अच्छा जी रहा है, सब कुछ कर रहा है। और एक दूसरा इंसान जो किसी का छिलका फेंका, मौस का छिलका फेंका, उसके ऊपर कोई पैर रखकर वो अपने आप गिर के मर गया, तो मरण। तो मैं ये चीज दिखाया आपके सामने। तो हम जो चीज बात करें, फियर, हम एक डर के बारे में बात करें। हमारे अंदर जो मरण का डर है, हम लोग उस चीज के लिए बारे में बात करें। तो जो मरण का डर है, अभी थोड़े लोग, मैं बताता हूँ आपको, थोड़े लोग जो है किसी की हत्या करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी से डरते नहीं है। वी डोंट फियर टू एनीवन। मेनी पीपल सेज when they are killing people, when they are beating people, they say we don't fear to anyone. Or because of some wrong influences, some people do bomb blast and all these things because of wrong influences, right? But they say we don't fear anyone, we don't fear to anyone, right? हम लोग डरते नहीं किसी से, हम किसी से डरते नहीं है। So I'm not talking about this fear, killing someone, beating someone, and we say we don't fear. See, that is what the word is telling. Ecclesiastes 3rd chapter में we will read. Ecclesiastes के पुस्तक में 3रे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे और 20वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए,
सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। All go unto one place, all are of the dust and all turn to dust again. हम सब मिट्टी से बने हैं और हमको मिट्टी में जाना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को अधिकार दिया है कि हमको मिट्टी खाने के लिए, हम मिट्टी से आए और मिट्टी खाएगा वो। ये हमारा पहला मरण है, तो हमको पहले मरण के लिए डरने की जरूरत नहीं है हमको। तो हम लोग को कि हम लोग जैसे देखेंगे, जिसके अंदर डर है वो डर ही कहे कि हमारे जीवन को क्या है, जीत के आगे जाती है। लेकिन हमको कैसे जीत के आगे जाना है, हम लोग इसी चीज के लिए बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग 21वां वचन। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है। वी डू नॉट नो व्हेन वी डाई, वी डू नॉट नो वेयर वी गो, वी गो टू हेवन और वी गो टू हेल, वी डू नॉट नो। यही परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है। कौन जानता है? जो एनिमल्स है, जो पशुएं हैं, सब मिट्टी में ही जाएंगे। लेकिन हम मरने के बाद में हम ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे हमको पता है क्या? मरने के बाद नहीं पता। तो सेम प्रकार में जो लोग मारते हैं, जो लोग मर्डर करते हैं, जो किसी का जान लेते हैं, उनको पता है क्या वो मरने के बाद में वो लोग किधर जाते हैं? नहीं पता। बट वो लोग बोल रहे कि हम डरते नहीं है किसी से, हम नहीं डरते। सो व्हाट दे आर डूइंग? दे आर किलिंग पीपल। Three things I will keep about fear, and second is about faith, and about people who say we don't fear. So हम लोग रेवलेशन के अध्याय में प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। रेवलेशन 21 chapter and 8th verse. See what God is telling. पर डरपोकों और अविश्वासियों, but the fearful and unbelieving, the people who say I fear, जो लोग कहते हैं कि हमको डर होता है, डरते हैं वो चीज, जो लोग डरते हैं। कौन? जो लोग डरते हैं, उनके लिए परमेश्वर कह रहा है if you fear for the death, God is telling, if you fear for the death, there is first death for everyone. No one can escape from the death. No one can escape. No one have that authority to run from the death. But still we are trying to escape from the death. हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग मरण से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमेश्वर वही सिखा रहा है, पहला मरण सबके लिए है, लेकिन जो डरता है, जीवन रखकर जो डरता है, मरने का जो डर, जिसके अंदर डर होता है, परमेश्वर उसको कह रहा है, जो डरता है वो अग्नि के ज्वाला में फेंका जाएगा, उसकी आत्मा को। ये देखिए, आप आगे पढ़िए। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और ठोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आग और गंधक से। दिस इज द सेकेंड डेथ। This is the second death. God is talking. Who is fearing for the death, they will be thrown in the lake of fire. The person who is fearing for the first death, they will be thrown in the lake of fire. Hallelujah. The person who is not believing, the person who do not have faith, they will be thrown in the lake of fire. Hallelujah. The person who kills, the murderers, they will be thrown in the lake of fire. Glory. See, you can see so many things. So we are talking only about the power of death and the fear of death. So how to overcome this thing? How to overcome from the death? The fear of the death. तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे, हम लोग जो सोर्स है, जो शुरुआत है, जो डर कहाँ से पैदा हो रहा है हमारे अंदर, जो डर कहाँ से पैदा हो रहा है, किधर से पैदा हो रहा है वो डर। तो हम लोग वो चीज देखेंगे। मत्ती 4 अध्याय निकालेंगे हम लोग। मैथ्यू 4:16। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। यहाँ पे देखिए, I will read even in English version. The people which sat in darkness saw great light. The people who were sitting near the death. The people who were sitting near the death. The people who were sitting near the death. Hallelujah. In the darkness. And to them which sat in the region and shadow of death. Amen. Where? Near the shadow of death. Light came upon them. तो यहाँ पे देखिए, परमेश्वर का उजाला किस पर आया? The people who are sitting near the shadow of death, the people who are sitting in the darkness, God light came upon them. God light came upon them. देखिए आगे का वचन पढ़िए, हम लोग देखेंगे।
17वां वचन 17th verse. From that time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at the hand. हाँ, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहने आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, रिपेंट योरसेल्फ, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आया है, परमेश्वर कह रहा है। सो when we have the fear, we have to overcome that fear of death. When we say the shadow of death is standing near us, we have to repent and we have to turn to the Lord. We have to receive the light in our life. We have to overcome. As we keep on reading, we will go forward. जैसे हम लोग देखेंगे आगे का वचन, हम लोग देखेंगे मैथ्यू 28:3, 28 और तीसरा वचन पढ़ेंगे हम लोग। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाली की नाई उज्जवल था। किसका रूप? यीशु मसीह का रूप जो था, यीशु मसीह का जो रूप था बिजली के जैसा था। किसके जैसा था? बिजली के जैसा। Countenance was like lightning and his remnant white as snow. परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो रूप था बिजली के जैसा था। और क्या कह रहा है? उसके जो कपड़े हैं, उसके जो वस्त्र है, क्या थे? स्नो से भी ज्यादा, स्नो से भी सफेद थे। जो बर्फ कहते हैं हम लोग, बर्फ से भी ज्यादा सफेद थे प्रभु के कपड़े। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देखेंगे। तो क्राइस्ट क्रिएट द गारमेंट व्हेन डेथ कम्स। जब मरण आता है हमारे जीवन में तो प्रभु उसके कपड़ों से हमको ढांपता है, उसके कपड़ों से हमको छुपा लेता है। उसके जो सफेद कपड़े हैं उससे हमको छुपाता है प्रभु हमको। तो वही देखेंगे हम लोग। सो जब हमारे जीवन में क्रिस्त है, जब हमारे जीवन में क्रिस्त है तो प्रभु हमको कपड़ों से ढांपता है। जब हम उसके उजाले को, उसके रोशनी को हमारे जीवन में जब लेते हैं, प्रभु हमको वो सामर्थ्य देता है कि वो मरण के जो डर के मरण को हम जीत के आगे जा सके। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू होली स्पिरिट। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग रेवलेशन की पुस्तक में। receive this word, this is very important in your life. Receive this word really. तो हम लोग रेवलेशन तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग, रेवलेशन 3 and 5। व्हाट इट सेज, लेट अस रीड, लेट अस मेडिटेट। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हालेलुया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। The person who overcome from the death because of hiding himself in the garment of Christ, hiding himself in the garment of Christ, you see. So God is telling, I will not cut his name from the book of life. From the book of life, and I will confess his name before the Father and his angels. परमेश्वर कह रहा है, मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखूंगा। जो परमेश्वर के वस्त्र में छुपा रहेगा, परमेश्वर के उजाले को स्वीकार करेगा। परमेश्वर वही कह रहा है, जो मरण को जीतेगा, मरण को विजय पाएगा, डर के मरण को विजय पाएगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग, पहले यूहन्ना 4 अध्याय और 18 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 1 John 4th chapter and 18th verse। मेरे साथ में पढ़िए आप लोग। There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। डर, we are talking about fear of death, fear of death। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं रहता, जिसके अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं रहता, उसको डर होता है। जिसके अंदर परमेश्वर का प्यार होता है उसको डर नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का प्यार होता है उसको डर नहीं होता, और जिसको डर होता है उसके अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं होता है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरा नाम ऊंचा करते हैं प्रभु। रेवलेशन 12वां अध्याय पढ़ेंगे हम लोग, रेवलेशन 12 and 11। सी व्हाट इट सेज। And they overcame him by the blood of Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death। यहाँ पे देखिए, who is overcoming? The person who is believing blood of Lamb, blood of Jesus Christ। जो इंसान, कौन इंसान विजय पा रहा है यहाँ पर? जो यीशु मसीह को विश्वास करता है, उसके खून को विश्वास करता है, उसके समर्पण को विश्वास करता है, जो खून उसने उस क्रूस पे बहाया, जो विश्वास करता है यीशु मसीह को, जो विश्वास करता है, उसका जीवन एक साक्ष्यदायी रहेगा। His life will be a testimony।
तो वही हम लोग डिटोनॉमी पढ़े कि हम लोग झूठे साक्ष्य नहीं ठहरना चाहिए दूसरों के लिए, लेकिन हम परमेश्वर के खून को विश्वास करते हुए, परमेश्वर को विश्वास करते हुए, यीशु मसीह को विश्वास करते हुए हमारा जीवन एक साक्ष्यदायी फलदायी रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एंड दे लव नॉट देयर लाइव्स अनटू द डेथ। जो परमेश्वर के को विश्वास करता है, जो परमेश्वर के यीशु मसीह के खून को विश्वास करता है, वो मरने का डर नहीं रखता, वो डरता नहीं है मरण से। Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. We give you all the glory and the praises, O Lord. Let your name be praised alone, O Lord Jesus Christ. We lift your name higher and higher, O Lord. Because the glory belongs to you alone, O Lord. There is a life in you alone, O Lord. You are the creator, O Lord. You are the garment, O Lord. Yes, Lord. This life, the soul belongs to you alone, O Lord. Yes, Lord. We do not have that authority, Lord, that we can live forever, O Lord. Yes, Lord. Only you have that thing, O Lord. Yes, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. हम आगे के वचन में पढ़ेंगे कि ध्यान करते रहिए परमेश्वर के वचन पे कि परमेश्वर हमको क्या सिखा रहा है। पहले तिमोथी 5 में भी कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है हमको प्यार करने के लिए सिखाता है। जो परमेश्वर का जो कमांडमेंट्स है, जो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, हमको परमेश्वर की आज्ञाएं से ये सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर हमको प्यार करने के लिए सिखा रहा है। परमेश्वर वो प्यार कैसे रहना चाहिए, परमेश्वर के दिखा रहा है कि हम दिल से परमेश्वर को प्यार करना चाहिए और एकदम हम्बलनेस से, सिंसियरिटी से, खुले दिल से हम परमेश्वर को प्यार करना चाहिए। हाँ, परमेश्वर का वही और अच्छे विवेक से हम परमेश्वर को प्यार करना चाहिए। एक साफ विवेक को, हमारे विवेक में कुछ डाउट्स नहीं रहना चाहिए कि हाँ हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। परमेश्वर का वचन सीधा सीधा बात कर रहा है। जब हम परमेश्वर को विश्वास करेंगे, उसके खून को विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के खून को विश्वास करेंगे, हमारा जीवन एक साक्षीदार रहेगा। और परमेश्वर कह रहा है मैं उसका उद्धार करूंगा। उसको क्या, कहाँ पे, उसका नाम कहाँ पे लिखने लगाऊंगा? जीवन की पुस्तक में। हमारा नाम कहाँ पे लिखा जाएगा? जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। तो देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इक्लेसियस 8:12 and 13। यहाँ पे 12 में देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर। दो ए सिनर डू इविल एंड 100 times and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before him। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हिंदी में पढ़ के दिखाता हूं आपको मैं। चाहे पापी 100 बार पाप करे, अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और अपने ताई उसको सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। The people who are doing sinning again and again and again, but still what is telling? 1000 times, 100 बार वो लोग पाप कर रहे हैं, क्या कह रहा है? तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, the people who fear to the Lord, so the fear is good for us. When fear coming in our lives, so it is good that it is correcting us. हमको सुधार रहा है। जो हमारे अंदर का जो डर है वो हमको सुधार कर रहा है, हमारे जीवन में सुधार रहा है वो चीज को। तो डर अच्छा चीज है, लेकिन वो डर हमको जीत के आगे नहीं जाना चाहिए, हम उसको जीत के आगे जाना चाहिए। परमेश्वर वही चीज सिखा रहा है यहाँ पर। तो हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग देखिए 13वें वचन में क्या कह रहा है। बट इट शैल नॉट बी वेल विद द विकेड, neither shall be prolong his days, which are as a shadow, because he feareth not before God। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो दुष्ट का भला नहीं होगा। He will be not saved. The wicked people will not be saved. They will be thrown in the lake of fire. Hallelujah. So, no need to worry for the first death, but worrying for the second death will be profitable, will be fruitful. Yes. तो परमेश्वर वही सिखा रहा है कि हम लोग जो डरता नहीं है वो अग्नि में फेंका जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग 14वें। देखिए परमेश्वर का वचन। So, this is the duty of man. परमेश्वर का वचन वही कह रहा है। रोमन्स की पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे। रोमन्स की पुस्तक में 1 अध्याय और 17 वचन क्या कह रहा है। पहला रोमन्स की पुस्तक में 1 अध्याय और 17 वचन। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। What is talking? For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. When we are living in the faith, because of the righteous God, when we are having faith on Jesus Christ, when we are having faith on God, God will reveal. परमेश्वर हमारे जीवन में मदद करेगा कि हमको कैसे विश्वास करना चाहिए। विश्वास मतलब क्या? विश्वास बोले तो क्या? व्हाट इज फेथ? विश्वास का अर्थ क्या है?
हम लोग पढ़ेंगे रोमन्स की पुस्तक में 3 अध्याय, रोमन्स 3:25 एंड 26। क्या कह रहा है? Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रकाशित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से अनाकाली की, और उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर हमको विश्वास के बारे में सिखा रहा है हमको, कि हम जब परमेश्वर के ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं, विश्वास करते हैं, कि उसके खून पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमको हमारे सारे पापों से क्या करता है? हमको क्षमा करता है। हाँ, और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से अनाकानी की, और कि उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। आगे के वचन में देखिए फिर क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। So here what we see, the person who start believing, the person who start having faith on Jesus Christ, on his blood, that believing in the blood of Jesus Christ is a faith। हम जब यीशु मसीह के खून को विश्वास करते हैं, that is a faith। जब हम यीशु मसीह के खून को विश्वास करते हैं, when we believe Jesus Christ blood, that is a faith। आगे देखिए, और Jesus Christ blood is a grace for us। यीशु मसीह का जो खून है हमारे लिए कृपा है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमको धार्मिक बनाता है, उसके नीतिमान का भाग बनाता है हमको। परमेश्वर हमको उसके वस्त्र से घेरता है हमको। जीसस क्राइस्ट he covers us by his garment when we start believing his blood। When we start believing his blood, when we believe his blood works as a faith in our life। Amen। When we believe Jesus Christ blood, जब हम यीशु मसीह के खून को विश्वास करते हैं, that is a faith। और उसका जो खून है, that is a grace। His blood work as a grace in our life। तो देखिए, so submitting to Jesus Christ is believing। जब हम विश्वास कर रहे हैं, हम खुद को समर्पण कर रहे हैं, हमारे जीवन को खुद को समर्पण कर रहे हैं हम लोग, राइट। हम खुद को समर्पण कर रहे हैं, हमारे जीवन को समर्पण कर रहे हैं हम लोग, कि यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए, राइट। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हाँ, शेडेड जो यीशु मसीह ने जो मरण पाया उस क्रूस पे, जब हम इस चीज को विश्वास करते हैं तो हम लोग को परमेश्वर क्या करता है? वॉट एवर एरिया इज देयर इन अवर लाइफ, वॉट एवर द ट्रबल इज देयर, वॉट एवर द फियर इज देयर इन अवर लाइफ, जीसस क्राइस्ट हेल्प अस, जीसस क्राइस्ट गिव अस द विक्ट्री व्हेन वी बिलीव हिज ब्लड। Jesus Christ give victory to us to overcome that things, to overcome from the fear of the death, to overcome from all the troubles we are getting fear, from all the troubles we are facing. Lord will help us to overcome from it. So when we do not have fear in us, जब हम परमेश्वर को डरते नहीं है, so that fear will overtake to us। But when we have the fear of the Lord, when we have the love of God in us, so God will help us, God will help us to overcome, God will help us to overcome that fear, God will help us to overcome that fear of death। तो परमेश्वर हमको यही सिखा रहा है कि God is giving, when we believe Jesus Christ blood, that is a faith। तो वही हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट वचन कि हम लोग जो ने पिछले हम लोग पढ़े, हम लोग रेवलेशन 21:8 में कहता है कि जो डरते हैं उसको अग्नि की ज्वाला में फेंका जाएगा, और जो विश्वास नहीं करता उसको अग्नि की ज्वाला में फेंका जाएगा। ये दूसरा मरण है, दिस इज द सेकंड डेथ। हु डू नॉट फियर दे विल बी थ्रोन इन द लेक ऑफ फायर, एंड हु डू नॉट हैव फेथ दे विल बी थ्रोन इन द लेक ऑफ फायर। सो दिस इज द सेकंड डेथ। सो डू नॉट वरी फॉर द फर्स्ट डेथ, वी हैव टू ओवरकम। डेथ इज फॉर एवरीवन, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम द डेथ। So we have to overcome. We have to overcome by believing blood of Jesus Christ. We have to overcome that fear of death. We have to overcome the troubles which is bringing in us, and we are getting fear. We are worrying for these things. We should not worry about these things. We should give everything to the Lord. We should give each and every single thing to the Lord. तो थैंक यू। हम लोग धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको ये चीज़ सिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्रगुजार करते हैं हम, और हम लोग यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने इतने सुंदर से मौके पर हमको तेरा उसका वचन हमको देने के लिए दिया। तो धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग खत्म कर देंगे। Mighty God, we thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Yes. We give you all the glory and the praises, O Lord Jesus Christ, for helping us, O Lord, to understand, O Lord, your truth, O Lord. Yes, Lord, help us, O Lord, to
receive your truth in our life, O Lord, every day of our life, O Yes, Lord. Lord. Mighty God, be gracious and be merciful, Lord. Help us, O Lord, to believe a blood, O Lord Yes, Jesus Lord. Christ. Thank you, Lord. Help us, O Lord, to believe a blood, O Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Help us, O Lord Jesus Christ. Be gracious and be merciful, Lord. Yes, Lord, deliver us, O Lord, from all the Yes, Lord, thank from you, the fear of the Jesus. death, O Amen, Lord. amen. Deliver us, O Lord, from Yes, the fear Lord, of the deliver us, death, O Lord. Lord. Yes, Lord. Help us, O Lord, to overcome the fear of the Yes, death, O Lord, Lord, please, Lord. by the word of God, O Yes, Lord. Lord, thank you, By the Jesus. word of the God, O Lord. Yes, Lord, thank you, Help us, O Lord, Jesus. to receive your light in our life, Yes, O Lord, Lord, to receive overcome the- the fear of the death, O Yes, Lord. Lord, thank you, Jesus. Help us, O Lord Jesus Christ, to receive your garment in our life, O Lord, to Yes, hide Lord, in your thank you. garment, O Lord. The mighty Yes, God, Lord Father. Jesus Christ. Be gracious and be merciful, Lord Jesus Merciful, Christ. Lord. Be gracious and be merciful in the name of Merciful. Jesus, mighty name of Nazareth. Amen, thank you, Oh, Jesus. Rabba Shabba Rabba Dalava Barikadare Barabasor Hendere. Oh, Riandere Barabasor Hendere Rikadalaba thank you, Rehabo Jesus. Dalava Bare. We break every fear. We Yes, break every fear which is ruling in the Hallelujah. people's life. We Amen. break it in the name of break- Jesus Christ, O Lord. Amen. We break it in the name of Jesus, mighty name of Amen, Nazareth, Lord. amen, amen. We break every darkness powers which Yes, is Lord. ruling in people's life Jesus' right name. now. We break it in the name of Yes, Jesus Jesus' Christ name. of Amen. Nazareth. In Jesus' mighty name. Yes, We Lord. rebuke it in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Thank you, Christ. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Yes, Lord, thank you, Lord, be Jesus. gracious, O Lord. Be Yes, Lord, merciful, we Lord. worship you, प्रभु Lord. तेरे लोगों पर दया कर प्रभु, तेरे लोगों पर कृपा कर प्रभु. Yes, Lord. हाँ प्रभु, तेरी दया दे प्रभु, तेरी Yes, कृपा Lord. दे प्रभु, Yes, कि Lord. तेरे प्रभु तेरे विश्वास तेरे तुझ पे विश्वास करने के लिए Yes, सहायता Lord, कर thank you, प्रभु, Jesus. तेरे खून को विश्वास करने के लिए प्रभु उनको सहायता कर प्रभु, दया कर प्रभु, कृपा कर प्रभु. Yes, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी Yes, Lord. स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं. We Yes, pray, O Lord. Lord, for your people, O Lord. Help them, O Lord, to believe your blood, O Lord Jesus Yes, Christ, Lord, thank you, and to Jesus. receive the grace in their Yes, life, O Lord, let Lord them Jesus receive Christ. it. Bless them, Lord, Father. help them, O Lord, to overcome, O Lord, Yes, the Lord, fear let of the them death, O overcome, Lord. Father. Overcome, Lord. Help them, O Yes, Lord, Lord. to Yes, overcome Lord. the fear of the death, O Lord. Yes, Lord, In the overcome, name of Jesus Christ, Lord. Amen. In the Thank you, name Jesus. of Jesus, mighty In the name of of Jesus, Nazareth, yes, Lord. yes, Oh, Lord. Rabba Shabba Rabba Dalava Barika Thank you, Dareva Rabba Jesus. Sore Thank you, Hendere. Jesus. We Hallelujah. break every demonic works, O Yes, I Lord. break. We break every I demonic break works that. in the name of Jesus, I mighty name. bind that. We break every evil I powers, break evil that. forces. We break every witchcraft which Yes, is Lord, I working break. in the name of Jesus, Jesus mighty Christ, name. amen. We burn it in the ashes. Yes. I put in the cage and I seal the doors Yes, of the Lord, cage and I thank you, burn it with the holy Jesus. fire. Yes, Lord, holy In the fire. name of Jesus, mighty name Fire of on the holy Nazareth. fire. In the name of Jesus Christ. Yes, Lord, thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Yes, We give you all the glory and praises, O Thank Lord. you, Jesus. Let your name be praised alone, O Yes, Lord. Lord. Let your name be praised alone, O Yes, Lord. Lord, thank you, In the Jesus. name of Jesus Christ, O Lord. Hallelujah, Father. In the name of Jesus' mighty name, O Lord. Amen. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Jesus. Spirit. Yes, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Yes, Lord. Spirit. Thank you, Lord, we release your mighty fire, O Lord. Yes, Lord, thank you, Jesus. We release your mighty fire, O Lord. Thank you, We Jesus. release your mighty fire in the name you, of Jesus Jesus. Christ, Lord. Thank you for this wonderful Thank you, time, O Jesus. Lord Jesus Yes, Christ. Let your people receive your light, O Yes, Lord. Lord. Let your people receive your Bless them, word, O Father. Lord. Bless them, Let your Father. people receive the truth, O Lord. Lord, in Bless their them, life, O Father. Lord. Help them, O Lord. Yes, Lord Lord. Jesus Christ, be gracious Yes, and be merciful this wonderful time, O Lord. We Thank you, thank you, Jesus. Lord. We glorify your name, Thank O you, Lord. Jesus. We worship you, Lord. Yes, Thank you for everything, O Lord, you're Thank doing, you, O Lord, Lord. Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank Thank you, you, Holy Jesus. Spirit, O Lord. We give you all the glory and the praises, O Lord. Let your name be praised alone, O Lord. Yes, And we Lord. pray this small prayer, O Lord. Yes, In Lord. the name of Jesus Yes, Christ Lord. of Nazareth, O Lord, we pray, O Lord. Amen. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus.